Assalamu alaikum dear students. Today let us discuss about the salts and their formation. So it is today's topic. Salts क्या होते हैं? They are the chemical compounds. ये कुछ ऐसे chemical compounds होते हैं जो ionic होते हैं. So we can say they are the ionic compounds. Salts जो हैं वो ionic compounds होते हैं जिसमें दो पार्ट होते हैं. एक पार्ट दो तरह के आयन्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं. एक पार्ट जो इसका होता है दैट इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट, दैट्स कॉल्ड कैटायन, एंड अनदर पार्ट जो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है that is called a negative ion or anion. So we can write here that salts are the ionic compounds. Salts are the ionic compounds consisting of two parts. One part carrying a positive charge, that's called the positive ion. It's also called as cation. And another part that carries negative charge, that's called anion. So we can say that a salts are the ionic compounds consisting of two parts, one part carrying a positive charge called a positive ion or cation, and another part carrying a negative charge called a negative ion or anion. तो ये तो सॉल्ट्स की डेफिनेशन है, लेकिन इसमें आपको ये याद रखना है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इसमें प्रेजेंट होते हैं, वो एक दूसरे के दे आर इक्वल, वो बराबर होते हैं, दे आर इक्वल. सो दिस the total number of the positive charges is equal to the total number of negative charges, so that the salt is electrically न्यूट्रल. तो सॉल्ट क्या है इलेक्ट्रिकली? ये न्यूट्रल है, क्योंकि इसमें जो कैटायंस हैं उनका वो होते हैं इक्वल टू द नंबर ऑफ द एनायंस, सो द सॉल्ट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि the number of positive charges is equal to the number of negative ions. Number of positive ions in a salt is equal to number of negative ions. So the salt is जब चार्जेस बराबर होते हैं तो सब्सटेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. सो द सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. और इसमें जो ये पॉजिटिव आयन होता है, पॉजिटिव आयन, इट जनरली इज अ मेटल आयन. ये जनरली क्या होता है? देयर आर सम एक्सेप्शंस आल्सो, बट जनरली ये क्या होता है? मेटल आयन. ये मेटल आयन होता है. सो द पॉजिटिव पार्ट is generally a metal ion. तो कुछ examples आपको मैं salts की यहाँ पे लिखूँगा. For example, you have got sodium chloride, NaCl, very common salt. इसकी formula जो है that is Na and Cl, और इसमें जो cations and anions होते हैं, इसमें positive part जो होता है that is cation, that is Na positive, और जो negative ion इसका होता है that is Cl negative, chloride ion. तो ये इसमें आयन्स होते हैं कैटायन एंड एनायन. सो इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज द चार्जेस आर इक्वल. इसी तरह से सोडियम सल्फेट है हमारे पास, Na2SO4 सोडियम सल्फेट. इसमें हमारे पास देयर आर टू सोडियम पॉजिटिव आयन्स एंड there is the negative charge 2 also on sulfate ion. So the charges are equal, 2 positive charge and 2 negative charges, so the salt is electrically neutral. इसी तरह से बहुत सारे salts हैं, like you have got calcium carbonate है आपके पास, CaCO3. इसी तरह से sodium carbonate है, Na2CO3. Yeah, there are zinc sulfate is there, copper sulfate is there. Different types of the salts are there which are electrically neutral. तो अब ये जो salts हैं ये कैसे, how the formation takes place? It takes place by a large number of reactions. तो कुछ general reactions हैं जिनमें formation of salts हो जाती है, formation
ऑफ सॉल्ट्स, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स, जनरल रिएक्शन जो आपने बहुत बार पढ़ी है, दैट इज द very common reaction that's called the neutralization reaction. So salts are formed by neutralization reactions. Salts are formed by the neutralization reactions. इसमें बहुत बार आपने पढ़ा है कि neutralization reactions are those reactions in which acid reacts with a base to form salt and water. तो यहाँ पर भी हम उसी तरह से आप सिर्फ reaction लिखेंगे जो हमने बहुत बार लिखी हुई है, NaOH, that is sodium hydroxide plus HCl. It gives a salt, that is NaCl, and it gives water also. So इसी तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास एक बेस KOH, and it reacts with an acid, let it be HCl, H2SO4, or nitric acid, HNO3. HNO3 is a nitric acid, and this, it will form potassium nitrate, KNO3 plus water, H2O, potassium nitrate salt, potassium nitrate. तो इसमें जो अभी मैंने कहा था कि इसमें जो पॉजिटिव आयन्स होते हैं, दे आर जनरली द मेटल आयन्स. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सोडियम यहाँ पे पॉजिटिव होगा, क्लोरीन नेगेटिव, पोटेशियम पॉजिटिव होगा, NO3 नाइट्रेट, एंड दैट इज़ नेगेटिव आयन. इसी तरह से मैंने ऊपर भी अभी लिखा था कि जो ये सोडियम है, इट इज़ जनरली पॉजिटिव पार्ट जो होता है इनका सॉल्ट्स का, दैट इज़ जनरली ए मेटल आयन. जनरली वो मेटल आयन्स होते हैं. फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम पॉजिटिव पार्ट है, दैट इज़ अ मेटल आयन. जिंक सल्फेट में जिंक पॉजिटिव पार्ट है, दैट इज़ अ मेटल आयन. कॉपर सल्फेट में कॉपर पॉजिटिव आयन है, दैट इज़ अ मेटल आयन. सो जनरली दे आर द पॉजिटिव पार्ट्स ऑफ द सॉल्ट्स, दे आर मेटल आयन्स. इसी तरह से कुछ और रिएक्शंस हैं हमारे पास. एक तो हो गई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड और बेस के इन बिटवीन द एसिड्स एंड द बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. तो जो ये पॉजिटिव पार्ट होता है ऑफ द सॉल्ट विच कम्स फ्रॉम द बेस, ये तो एक तो ये मेटल आयन होता है और दूसरा बेस से आ जाता है. फॉर एग्जांपल ऑफ NaCl यहाँ पे देखेंगे, NaCl जो सॉल्ट है इसमें पॉजिटिव पार्ट Na है. तो ये तो मेटल आयन है, एक तो ये मेटल आयन है, और दूसरा ये कहाँ से आता है, फ्रॉम बेस, क्योंकि NaOH बेस है, तो बेस से आ गया इसका पॉजिटिव पार्ट, किसका, सॉल्ट का. इसी तरह से यहाँ पर KNO3, इसमें पॉजिटिव पार्ट हमारा पोटाशियम है, तो पोटाशियम जो है वो कहाँ से आ गया, KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से. तो बेस, ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है. तो ये बेसिस जो हैं दे प्रोड्यूस पॉजिटिव, they produce the positive parts or the positive ions. ये positive ions, they give positive ions in a salt. ये positive ions देते हैं in a salt. तो ये जो अब positive part होता है of the salt which comes from the base, that's called the basic radical. लेकिन जो नेगेटिव पार्ट होता है सॉल्ट का, दैट कम्स फ्रॉम द एसिड, दैट इज कॉल्ड एसिड रेडिकल. नेगेटिव पार्ट देखिए यहाँ पे सॉल्ट का, वो क्लोरीन है, Cl नेगेटिव, इसी तरह से NO3 नेगेटिव. तो क्लोरीन नेगेटिव पार्ट कहाँ से आ गया, फ्रॉम एसिड HCl. इसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे इसमें पोटेशियम नाइट्रेट में NO3 जो यहाँ पे है, ये इसका नेगेटिव पार्ट है, पोटेशियम पॉजिटिव पार्ट है. पॉजिटिव पार्ट आ गया फ्रॉम बेस, तो नेगेटिव पार्ट NO3 कहाँ से आ गया, फ्रॉम HNO3, दैट इज नाइट्रिक एसिड. तो एसिड से नेगेटिव पार्ट आता है सॉल्ट का, और बेस से पॉजिटिव पार्ट आता है सॉल्ट का. तो जो बेस से आता है ये पॉजिटिव पार्ट, दैट इज कॉल्ड द बेसिक रेडिकल, एंड जो नेगेटिव पार्ट इसका आता है फ्रॉम एसिड, दैट इज कॉल्ड एसिड रेडिकल. तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो सॉल्ट में जो पॉजिटिव पार्ट आता है, या पॉजिटिव ये आयन होता है, पॉजिटिव पार्ट, ये कहाँ से आता है, फ्रॉम बेस. तो इसे हम क्या कहते हैं, बेसिक रेडिकल. बेसिक रेडिकल. तो सॉल्ट का जो नेगेटिव पार्ट आता है ये कहाँ से आता है, फ्रॉम एसिड, और इसे हम क्या कहेंगे, एसिड रेडिकल. So there are basic radicals and acid radicals in a salt. For example NaCl एक salt है, इसमें Na जो है पॉजिटिव पार्ट वो कहाँ से आता है, फ्रॉम बेस NaOH, और जो क्लोरीन नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ से आता है, फ्रॉम एसिड HCl. तो ये एसिड रेडिकल है, और Na पॉजिटिव जो है वो बेसिक
रेडिकल है यहाँ पे। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट रिएक्शन, हाउ सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ मेटल्स ऑन एसिड्स। ये भी आपने बहुत बार पढ़ी है ये वाली रिएक्शन, बाय द एक्शन ऑफ metals on salts, by the action of metals on acids, metals और acids जब react करते हैं they form the salts and hydrogen gas, जो आपने already पढ़ा हुआ है। यहाँ पे हम reaction लिखेंगे, for example zinc plus H2SO4, it will give you zinc sulfate ZnSO4 plus hydrogen gas। इसी तरह से मैग्नीशियम एक मेटल है, when it reacts with HCl it will give magnesium chloride MgCl2 plus hydrogen gas। तो जिंक सल्फेट सॉल्ट है एंड मैग्नीशियम क्लोराइड ये भी सॉल्ट है, मैग्नीशियम क्लोराइड। सो द सॉल्ट्स आर आल्सो फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ मेटल्स ऑन एसिड्स। यहाँ पे जिंक मेटल है, यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल है, तो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके ये सॉल्ट बनाते हैं और दे आल्सो रिलीज द हाइड्रोजन गैस। द हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड इन द रिएक्शन। दीज रिएक्शंस आर आल्सो द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इफ यू रिमेंबर जब मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ाया था तो वहाँ पे भी मैंने ये रिएक्शंस लिखी थी, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी कहलाते हैं। नाउ देयर आर सम अदर रिएक्शंस आल्सो in which the salts are formed, for example by the action of the acids on metal carbonates or bicarbonates। ये भी आपने पढ़ा है, by the action of metals on metal carbonates, by the action of acids on metal carbonates एंड बाइकार्बोनेट्स। ऑलरेडी आपने ये रिएक्शंस की हुई हैं, फिर से एक बार मैं यहाँ पे लिखूँगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है, व्हेन इट रिएक्ट्स विद HCl इट विल गिव कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि जब भी कोई कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है, एक तो वो सॉल्ट बना देते हैं और उसके साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी एज अ प्रोडक्ट रिलीज हो जाते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, दिस इज द कैल्शियम कार्बोनेट। व्हेन इट रिएक्ट्स विद HCl इट विल गिव CaCl2 दैट इज कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से एक बाइकार्बोनेट भी यहाँ पे हम लिखेंगे, NaHCO3 दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और वी कैन कॉल इट सोडियम बाइकार्बोनेट। व्हेन इट रिएक्ट्स विद HCl, जब ये HCl के साथ रिएक्ट करता है, it gives NaCl that is a salt, sodium chloride plus water plus carbon dioxide। ये आपने ऑलरेडी ये रिएक्शंस की हुई हैं, फिर से यहाँ पे तो हमने लिखी। इस तरह से there are some reactions which are helpful in the formation of the salts। Now ये जो salts होते हैं there are different families of the salts which depends upon what type of the acid or the base is involved in the reaction from which they are formed। like there are chlorides है हमारे पास, और chlorides जो salts होते हैं, they are the salts which are formed by the reaction of hydrochloric acid with any base। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करता है, जो वहाँ पे सॉल्ट बनता है, दैट इज द क्लोराइड सॉल्ट, क्लोराइड फैमिली से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे एसिड जो है दैट इज HCl विथ एनी बेस क्या है, एनी बेस, तो वहाँ पे डेफिनेटली एक सॉल्ट बनेगा, और वो जो सॉल्ट बनता है दैट सॉल्ट इज कॉल्ड है क्लोराइड सॉल्ट। फॉर एग्जांपल हमारे पास NaCl है, NaCl में एक तो सॉल्ट जो है ये तो सोडियम क्लोराइड है, और बेस इसमें इन्वॉल्व कौन सी हो जाती है, NaOH बेस इज इन्वॉल्वड। तो और ये किसके साथ ये बेस रिएक्ट करती है, विथ HCl। जब HCl के साथ रिएक्ट करेगी तो NaCl सॉल्ट बनेगा, सो NaCl इज ए क्लोराइड सॉल्ट। इसी तरह से पोटेशियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड है, और इन सबों में HCl रिएक्ट करता है विथ एनी बेस कैन बी इट कैन बी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो जो भी सॉल्ट वहाँ पे बनेगा दैट विल बी क्लोराइड सॉल्ट। इसी तरह से नाइट्रेट्स हैं, एक फैमिली सॉल्ट्स की, नाइट्रेट्स
नाइट्रेट्स। तो नाइट्रेट्स कौन से सॉल्ट्स होते हैं? वो सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद एनी बेस। यहाँ पे नाइट्रिक एसिड इन्वॉल्व होता है HNO3 विद एनी बेस। तो बेस क्या है? प्लस एनी बेस, कोई भी बेस। डेफिनेटली वहाँ पे एक सॉल्ट बनेगा, जो सॉल्ट बनेगा दैट विल बी ए नाइट्रेट सॉल्ट। फॉर एग्जांपल हमारे पास है सोडियम नाइट्रेट NaNO3, हमारे पास है सोडियम नाइट्रेट। तो अगर इसमें जो ये नाइट्रिक एसिड है HNO3, नाइट्रिक एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करता है NaOH के साथ, दैट इज़ द बेस, तो सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। इसी तरह से नाइट्रिक एसिड अगर रिएक्ट करता है विद KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो वहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। इसी तरह से अगर नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वहाँ पे कैल्शियम नाइट्रेट बन जाएगा। तो वो सब नाइट्रेट सॉल्ट्स होते हैं। इसी तरह से सल्फेट्स भी हमारे पास सॉल्ट्स हैं, सल्फेट्स। तो यहाँ पे कौन सा एसिड इन्वॉल्व हो जाएगा? दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो H2SO4 किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करके जो सॉल्ट बनाएगा दैट विल बी द सल्फेट सॉल्ट। फॉर एग्जांपल सोडियम सल्फेट है हमारे पास, पोटेशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, ये सब सॉल्ट्स जो हैं दे आर द सल्फेट सॉल्ट्स एंड they are formed by the reaction between when the sulfuric acid reacts with any of the base. For example, if the sulfuric acid reacts with the sodium hydroxide, sodium sulfate will be formed. If sulfuric acid reacts with potassium hydroxide, potassium sulfate will be formed. If sulfuric acid reacts with the magnesium hydroxide, magnesium sulfate will be formed. And all those salts are called the sulfates. इसी तरह से हमारे पास carbonates हैं और phosphates हैं, oxalates हैं, acetates हैं. So there are different salts. Thank you for watching, and you can wait for my next video in which we will be discussing about the different types of the salts. Thanks.